हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू सबन 2080। नए साल में नई उमंग, नई आशाएं और नई मार्केट। एडिबल ऑयल मार्केट के इस साल में हम क्या देख सकते हैं, क्या हो सकता है, प्राइसेस कहाँ जा सकती है, उसके बारे में मेरा जो हर साल का एनुअल वीडियो है वो आपके लिए पेश है। लास्ट ईयर का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, उसमें मैंने एक बात बहुत स्ट्रेस करके बोली थी और माता जी की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से वो एग्जैक्टली करेक्ट हुई। मुझे जो मेरे पिताजी ने, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पिताजी ने मुझे जो सिखाया था कि जो होए सोमा शुक्र दिवाली, तो हंसे किसान रोए व्यापारी, it is exactly proven correct. Once again, it has been proven correct that whatever we have been learning, understanding from our Vedas and our grunts and our ancestors has been proved once again correct. Let me give you a small example. Last year दिवाली में मुहूर्त के समय पामोलिन 10 किलो का भाव at GNPT was trading at 995 and soybean seeds were around 5200. आज के प्राइस देखेंगे तो JNPT में आज हमने पामोलिन का प्राइस 845 में ट्रेड किया है, जबकि सोयाबीन सीड के प्राइस आज भी 5200 है। मींस सोया सीड के प्राइस, जहाँ जो फार्मर्स पूरे साल मेहनत करते हैं उनको सेम प्राइस मिला, बट रिफाइंड प्रोडक्ट palm oil, which is the highest consumed imported oil in India, is trading 20% discount to the last year's price. So last year's prediction was bang on target. As per you say that भगवान ने हमारे को जो बताया था, जो समझाया था मेरे पिताजी ने, उसे मैं आप तक पहुंचा पाया and it came bang on target. This year is a very surprising and a very रिलीफ फॉर द ट्रेडर्स कम्युनिटी। ये साल वो प्रॉब्लम नहीं है, ना सोमवार को दिवाली थी, ना शुक्रवार को दिवाली थी, इस साल संडे को दिवाली थी, एज वी ऑल नो। एंड सो दैट ओमेन इज आउट नाउ। सो नाउ वी कैन गो ऑन अ रेगुलर ट्रेड। नाउ रेगुलर ट्रेड भी मैं आपको समझाऊँ तो जो प्राइसिंग मैंने निकाल के रखी है, लास्ट ईयर सीबॉट was trading at 75 and right now it is at 52. KLC was trading at 4200, आज है 3900, 38, 85, 3900 something. CNF prices last year CPO को $970 for CNF India delivery था, आज around 890 है। Olin last time was 995, it is 880. Soya became the most surprising, as you can see with the CBOT pricing was $1496. Sunflower was around $1500 last year, this time in Diwali. It is right now $1097 and sunflower is still at $950. The most talked about thing right now, the bases, जो बहुत सारे ग्रुप्स में चर्चा होती हैं, बहुत इजीली सब समझते हैं bases is not that easy to understand, but let not get into what bases are. Bases last year were around 1100 to 1200 minus the CBOT price. Currently today it is around 550 minus the CBOT price. So this is what the comparison is between last year's price and this year's price. Now let's talk quickly about क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, and what is the scenario. The scenario today is Malaysia, Indonesia has high stocks. Malaysia, Indonesia has low exports. Malaysia, Indonesia's production is going to increase for palm oil. That is, the demand for palm oil in winter is generally fundamentally less. The crude price are trading at a lower range to the previous months. So crude oil down है, palm winter में नहीं चलेगा, जाम जाएगा, down है। Demand expected to be go down. Sunflower soya price is ranging around the same price in 3 months. Sunflower मुझे लगता है लास्ट 3 महीने से stagnant हो गया है. It is not rising, it is not deteriorating. The price is just moving just around the similar levels.
सो सनफ्लावर की 1 मिनट खाली बात करूँ क्योंकि बहुत चर्चा में है सनफ्लावर एंड एज यू ऑल नो कि ये दिवाली में एनसीडीएक्स ने सनफ्लावर क्रूड एक्स चेन्नई बेस फ्यूचर्स की ट्रेडिंग भी शुरू की है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे अलाउ किया. CPO and soya are still in the doldrums. They are still banned. So maybe next year after elections we might see a light to the tunnel. शायद open हो सकता है. That's anyone's guess and let's not get into all this. So sunflower crude futures has been launched for the first time in the history of any Indian exchange. Maybe internationally कहाँ कोई हुआ होगा तो I'm not very sure. मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है but let's not talk about the इंटरनेशनल बेस क्योंकि उसके लिए हम बहुत हुआ है. इंडिया में पहली बार सनफ्लावर क्रूड का फ्यूचर लॉन्च हुआ है और फ्यूचर लॉन्च होने की बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि सनफ्लावर का सप्लाई लास्ट 2 साल में बहुत बढ़ गया है. इट हैज़ कम्पीटेड विथ सोया बिग टाइम. इनफैक्ट सोयाबीन सीड हैज़ गॉन soybean become import has gone down drastically vis-a-vis sunflower's risen in the last 2 years if you compare it 2 years. So now why sunflower is coming so much? Obvious reason, Ukraine and Russia problem. Both of them have this problem of stocking sunflower in their own countries because of the fights. The rockets can go fly from anywhere to anywhere, so they have to sell it for money. So there is no production, stock, export or fertilizer issue or any other. Right now sunflower is trading only on the currency aspect of it. So whenever they need money they'll sell sunflower. When they don't need money they'll not sell sunflower. So since September I'm seeing this. That's in September if I'm not very wrong. September से sunflower price एकदम stagnant हो गया है. $920 $930 CIF India delivery last प्राइस सुना था. कुछ काम 840 850 में हुए थे बट दैट वाज जस्ट स्मॉल क्वांटिटी. द बेसिक क्वांटिटी इज 920 930 CIF इंडिया डिलीवरी एनी पुट और उससे नीचे नहीं गए. इट हैज़ बीन वेरी स्टैग्नेंट एंड आई कैनॉट से कि बहुत बढ़ गए. सोया के कंपैरिजन में आज भी सनफ्लावर नीचे है. पाम के कंपैरिजन में सनफ्लावर यस कंपेटिटिव है बट पाम इज स्टिल कम्पिटिंग. सो सनफ्लावर स्टोरी गोज दिस पे कि यहाँ सनफ्लावर रुका हुआ है. अब आगे सनफ्लावर में क्या होगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. सनफ्लावर में ब्लैंकेट तेजी हम तभी करेंगे जब ईदर ऑफ द साइड अनाउंसेस सीज फायर, दैट इज रशिया और यूक्रेन. ईदर ऑफ द साइड सेज ओके सीज फायर डन डस्टेड. That is the time the sunflower supply will start getting slower because once everything gets normalized, when things get normalized, that is the time when you want to assess your own self, and that is all economy and stuff like that. So till then sunflower is not going to rise drastically. जो 4 साल पहले था ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है. So sunflower is more or less the same. Soya, Argentina has a very big problem with the crop and gods have not been very kind to the weather. So Argentina crop is very less. Brazil is a fantastic crop and for that we have to thank the Brazil agriculture farmers. They did a fantastic job cultivating it. They got good weather, they have got good infrastructure and it is one of the biggest exporting commodities of Brazil. So Brazil has saved us. US is doing good, not bad. उनका प्रोडक्शन भी अच्छा है, कोई एंगल से कम नहीं है. So they both are compensating what Argentina has lost for the whole world basis. So this is how the basic sunflower and soya scenario is. पाम सिनेरियो तो ऐसा है ना कि भाई अब सब बोल रहे हैं और सबको पता चलता है कितना प्रोडक्शन है, कितना स्टॉक है, कितना ये है, ना फलाना है, ना ढीमका है. Let it be. Let's not talk about palm. Let's talk about in general what is our view going forward from this 7th to I won't tell next 7th. उतना बड़ा व्यू निकालना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल की मार्केट में because anything can happen anywhere. People are entering into war for just any reason. It's not getting over. You know what is happening in Gaza with Israel and
आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि वो क्या है क्या नहीं, इट्स नॉट आवर सब्जेक्ट एंड नॉट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. So let us stick to what can happen in the nearest term from November end, December end, and till Jan. So 3-4 scenarios which are very much factors जो हमारे आँख के सामने हैं. वो है इंडिया का सोया का नया क्रॉप, इंडिया का कॉटन का नया क्रॉप एंड इंडिया का ग्राउंडनट का नया क्रॉप जो ये दिवाली में से शुरू होगा. अकॉर्डिंग टू मार्केट अंडरस्टैंडिंग आई फील द क्रॉप इज नॉट दैट मच जो लास्ट ईयर था, एंड एज पर द एस्टिमेट्स भी पता है कि लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत क्रॉप कम है. महाराष्ट्र स्पेसिफिकली इज ट्रबल्ड विथ वेरी बैड वेदर फॉर बोथ cotton and for soya, so we might not get that big crop. Seasonal pressure आएगा no doubt, cotton में भी आएगा, soya में भी आएगा, but it should help only for the farmers and for local soya solvent buyers. So that should take care of supply of soya till February के बाद तो we have to import. So that sum ups for that. ग्राउंडनट का क्रॉप इतना बड़ा नहीं है, ग्राउंडनट की प्राइसिंग भी इतनी हाई है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी पुशिंग सॉफ्ट ऑयल्स डाउन. सो मोटा मोटी इट इज टेकन केयर ऑफ सोया न्यू क्रॉप, कॉटन न्यू क्रॉप एंड सन न्यू क्रॉप. About rabi crop, about mustard, we still are very much where we should not talk about it right now. अभी तो देखते हैं कैसे चल रहा है and how things plan out. So temporarily till June, if you take the whole scenario about what has happened today, जो KLC बढ़ के आया है, सीबॉर्ड माइनस था, रिकवर हुआ, प्रोजेक्ट अच्छा है, these are all temporary things, but things which is going to move our market for the next 3 months is things which you have to note if you are a trader. And the things are: A, the dragon firing, China firing. China has to pump up his economy. They are going to get down their interest rates. तो बैंक के interest rate कम होते हैं, the banks can lend more. The more they lend, the more they buy. The more they lend, the more they buy is the mantra. So more they buy means they'll buy more commodities, and soya is one of the biggest commodities. Even today's data shows that China has been one of the biggest buyer of soya beans from US. So that is their political angle. But soybean they'll have to buy China. So once China starts buying, and remember January you have the Chinese New Year for 9 days. Chinese New Year is something which no one is going to forget, because this year's millennium's biggest epidemic came after the Chinese New Year happened in 2020. So Chinese New Year is around the corner. So China is going to go big buying. They are going to buy big soy. They are going to buy big sun. But sun they don't have big consumption. So soy, palm, 2 big consumptions from the big country China. We in India are right now filled with our hand to mouth theory. We are buying, we are selling, we are buying, we are consuming. We are almost on the brink. We are not overbought, we are not leveraged. ना हमने बहुत लिया है, ना हमारे पास स्टॉक कम है. हम मोटा मोटी इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं, और हम नेक्स्ट 2 महीने तक हम भी इक्विलिब्रियम पे चलेंगे. मार्केट बहुत बढ़ेगी तो हम बैठ जाएंगे, मार्केट घटेगी तो हम बाय करेंगे. वो 100% है. मेरे बहुत सारे दोस्तों को बोल देता हूँ कि भाई KLC माइनस देख के, शिकागो का 150 माइनस देख के मगज मत खराब करना, रात को फ़ोन नहीं करना, कुछ नहीं होता है. शिकागो 150 माइनस होगा तो रात को बेसिस 50+ सुबह आ जाएगा. अब शिकागो 48, 49, 50 यही भाव दिखते रहेंगे आपको. ये हो सकता है और थोड़े नीचे चले जाए, 45 भी हो जाए, हो सकता है 55 भी हो जाए. तो 55 का बढ़ेगा नहीं, 45 का घटेगा नहीं, और उसको बेसिस कॉम्प्लीमेंट करते रहेगा. दिस हैज़ बीन द सिनेरियो नाउ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. दिस इज नॉट गोना बी, कोई हाथी घोड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका भी एक अलग स्टोरी है. दैट्स नॉट गो टू इनटू इट. बट 150 माइनस करके
टेंशन नहीं लेना, 150 प्लस से भी टेंशन नहीं लेना, बेसिस आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट इट। सो 25-50 पॉइंट डॉलर अगर प्लस माइनस भी होता है ना सोया में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पाम में। सोया और पाम में इतना डिफरेंस हो गया है, कहाँ $1100 और कहाँ $900, $200 का डिफरेंस काफ़ी है और हमें संभालने के लिए। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्थ दैट। कमिंग डाउन टू व्हाट आई एक्सपेक्ट, सो आई एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट मे बी 2 years, नो सॉरी 2 months, 2 years तो भाई जमाना ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2 महीने के लिए मुझे लग रहा है कि पाम हैज़ फाउंड अ बॉटम एट 815, 815-20 का भाव। आई डोंट थिंक सो कि हमें 2023 में देखने मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि 815-20 भाव होना पैन इंडिया डिफ़िकल्ट है। सो 15-20 की बॉटम समझ के आप बाय करो, डोंट बी ब्लाइंड बायर। पाम का सप्लाई रहने वाला ही है, पाम धीरे धीरे ज़्यादा होने वाला ही है। सुपर चाहिए आपको, बट द डिफरेंस बिटवीन पाम एंड सोया इज नाउ अगेन ₹100 for 10 kgs. That is what I'm saying. So palm is going to be in demand, good oil is going to be in demand. So all my traders who are good traders, everyone have to be very much careful. चढ़ के नहीं लेना है पर घटे तो लेना है, ये बात मगज में डाल लो। नेक्स्ट 2 महीने तक प्राइस क्या होंगे, फॉरकास्टिंग तेजी की है, ट्रेंड मेरा तेजी का है। मुझे फरवरी तक और तेजी लग रही है, मैं स्पष्टता से बोल रहा हूँ। किसी को भी मुझे पिंच करना हो तो आओ, पिंच करना कोई वादा नहीं, हमें सिर्फ मार्केट हरा सकती है, बाकी कोई नहीं। मार्केट अगर घट गई और दूसरे कोई कारण आ गए, तीसरा चौथा कोई कुआं निकल गया, अचानक थाईलैंड के पास बहुत सप्लाई आ गया और कुछ हो सका, तो 2 महीने में आई एम नॉट श्योर, बट टिल नेक्स्ट 2 months दिवाली का एक ही फंडा, स्ट्रेट अवे ओनली बाय बट ऑन डिप्स। चढ़ के लोगे फंसोगे फिर रोओगे, वो होता ही है। तो मेहरबानी करके चढ़ना नहीं, चढ़ के लेना नहीं, लेना है सोच के समझ के लेना है। पाम लेना हो पाम लो, सोया लेना हो सोया लो, सन लेना हो सन लो, आपका बुक देखो लो। माई रिकमेंडेशन ब्लाइंडली टिल जनवरी एंड फरवरी इज टू बाय एडिबल ऑयल, पाम ऑयल। उसके बाद क्या होगा, कितना मार्केट बढ़ेगा, क्या होगा, वो भगवान जाने, हमारे हाथ में नहीं है। मुझे उस मकरमरी में भी नहीं उतरना है। 2024 वी हैव इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, biggest election in the biggest economy of the world. So things will change. After things change, after the new government comes in, there's policies, there's scenarios that we'll talk later if we have time. Currently, once again, happy Diwali, happy New Year to all of you. जाते जाते आप सबके लिए, जो मुझे खुद शौक है और मैं सुनता हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, एंड दिस इज़ अगेन समथिंग विच ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी की मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कभी आप में से किसी के सहयोग से अगर मुझे उनको मिलना हो तो प्लीज़ हेल्प करना, मुझे उनको एक बार मिलना है। तो उनकी एक बहुत फेमस शायरी है जो बोल रहे हो, मैं थोड़ी कोशिश करूँगा कि थोड़ी उनकी तरह बोलूँ, और वो शायरी हमारे बाज़ार के लिए, आज के न्यूज़ के लिए, आज के सिस्टम के लिए बहुत एप्ट है। तो शायरी गोज़ दिस वे, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। ये हमारे बड़े बड़े एनालिस्ट, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। Thank you very much. Happy Diwali, Happy New Year. Keep buying edible oil. Yes, one more thing before I end. स्टॉक मार्केट के मेरे फ्रेंड्स जो हैं, स्टॉक मार्केट में कोई काम करता हो, you guys blindly buy power stocks. Power stocks blindly buy. Power stocks blindly buy. Because अगर 2024 में सेम गवर्नमेंट आएगी तो पावर स्टॉक फटेंगे। कौन सा पावर स्टॉक कर लेना है, नहीं लेना है, आपके एडवाइजर से बात कर लेना।
इन शॉर्ट दिवाली में दो चीज लेनी है, तेल लेना है, पावर स्टॉक्स लेने हैं स्टॉक मार्केट के लिए। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, कीप सेफ, कीप ट्रेडिंग।